حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے 377 عازمین حج پر مشتمل 7ویں قافلے کو مشیر اقلیتی بہبود کے خان، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی محمد سلیم، صدر نشین آندھرا پردیش حج کمیٹی غوث العظم، اسحاق بادشاہ MLC اور دوسروں نے تلبیہ کی گونج میں ایئرپورٹ کے لیے کل شب روانہ کیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی شفیع اللہ، ارکان حج کمیٹی اور دوسرے موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے عازمین سعودی عربیہ ایئر لائنز کی فلائٹ کے ذریعے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرح 7 فلائٹس کے ذریعے اب تک جملہ 2639 عازمین حج مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد طواف اور دیگر عبادات میں مصروف ہیں۔ AK خان نے حج امور میں اپنے 25 سالہ تجربات کی روشنی میں عازمین کو مفید مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین میں کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائیں، وہاں کے قوانین کافی سخت ہوتے ہیں، واپسی تک عبادات کثرت سے کرتے رہیں۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم نے عازمین کو وداع کرتے ہوئے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ توجہ عبادات کی ادائیگی پر دینی چاہیے۔ وہ اس سفر سے واپسی تک اپنی صحت کا خیال رکھیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اہم کاغذات اور رقومات کو حفاظت سے رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ شاپنگ میں وقت ضائع کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہر چیز آسانی سے اور سستی مل جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت اہتمام کریں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عازمین عمرہ ادا کرنے تک تلبیہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتے رہیں۔ تلبیہ پڑھی آپ لوگ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لا شریک لک۔ یہ کثرت سے پڑھنا ہے آپ لوگ۔ اترنے کے بعد بھی کار سے، جب بس سے بھی وہاں سے بھی جائیں گے تک پورا احرام پورا نکالنے تک پڑھنا ہے یہ۔ اور جو دعائیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اور وہاں پر ٹھنڈا پانی یا جوسز وغیرہ بھی جو ہے نہیں پینا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، اس سے ٹیبلٹ وہ کھائے تو پھر کچھ بھی ٹیبلٹ کا انفیکشن وغیرہ کچھ بھی ایسا رہتا، تو اپنے کو زمزم نارمل زمزم پیجیے آپ لوگ۔ اس سے جو ہے آپ کے اگر پاس جو بھی کچھ بھی بیماری بھی ہے تو اس سے شفا مل جاتا ہے۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کعبے کے طرف رک کر آپ لوگ پیجیے زمزم، دیکھیے آپ کتنے فریش ہوتے ہیں، ایک ٹیبلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر کچھ پی وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی چلے جاتا، اس سے جو نیت کرے ویسا شفا ملتا وہاں پر۔ تو اللہ کا کرم یہ ہے، اللہ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے خزانے میں وہاں پر۔ آپ جس طریقے سے دل سے مانگیے، آپ جو مانگنا ہے مانگیے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ہماری کنٹری کے لیے بھی دعا کریے آپ، پورے انڈیا کے لیے، تلنگانہ کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کے رہنا ہے، بلکہ یہاں پر بھی دعا کریے۔ اور ہمارے آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کے لیے، پڑوسی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کثرت سے دعا کریے۔ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے اللہ کے کرم سے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج میں ایک مرتبہ پھر MS کے طلباء نے شاندار نتائج حاصل کرتے ہوئے اپنی اہلیت کو ثابت کیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے MS کے جونیئر کالجز کے طلباء امتیازی کامیابیاں درج کرتے آ رہے ہیں۔ اس سال بھی انٹر کے تمام مضامین میں ان کی کامیابیاں قابل تعریف رہی ہیں۔ MS کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 طلباء نے انٹرمیڈیٹ میں 990 مارکس اسکور کیے۔ MS جونیئر کالج ملک پیٹ سال دوم کے ابرار اللہ حقانی نے MPC زمرے میں 990 نشانات حاصل کیے، جبکہ مہتی پٹنم گرلز جونیئر کالج کی مہتسین سلطانہ نے BPC میں 990 مارکس کے ساتھ امتیازی کامیابی حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں BPC کے 35 طلباء نے اور MPC سیکنڈ ایئر کے 10 طلباء نے 98% سے زائد نشانات حاصل کیے۔ اس کے علاوہ CEC میں رحمت النساء بیگم نے سب سے زیادہ 973 مارکس اسکور کیے۔ ان کا تعلق ٹولی چوکی MS جونیئر کالج سے، جبکہ ملک پیٹ جونیئر کالج کی عائشہ فرزین نے MEC میں 978 مارکس کے ساتھ ٹاپ کیا۔ آج تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ 11ویں اور 12ویں کے جو نتائج اعلان کرے ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے، الحمدللہ MS ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین نتائج کے ساتھ اپنے ٹاپ موسٹ رینکس حاصل کیا ہے اسٹیٹ کے۔ MPC میں ایک لڑکا 990 مارکس لا کے اسٹیٹ کے ٹاپ موسٹ لسٹ میں ہے، اور ایک لڑکی BPC میں وہ بھی 990 مارکس لائی ہے۔
मैतशीन नाम है उस लड़की का। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसे रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हर साल ये रिज़ल्ट जो हैं इंकरेजिंग हैं। ये सारे रिज़ल्ट जो आते हैं इसके पीछे हमारा स्टाफ और ख़ास तौर पे जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं शहर में वो हमारे यहाँ पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के नताइज हैं ये दी बेस्ट नताइज जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ MPC BPC बल्कि CEC और MEC में भी हमारे बेहतरीन नताइज हैं। आज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है इन बच्चों के साथ जो 98% एंड अबव, तो डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे मैं अपने MPC हो स्ट्रीम्स में MPC हो, BPC हो, CEC हो, MEC हो, आज इनका एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें काफ़ी बच्चे प्रेजेंट हैं जिनकी तादाद लगभग 60 के ऊपर है। जो ये बच्चे MS कॉलेजेस से जो बेहतरीन रैंक्स लाए हैं उनके पेरेंट्स के साथ इनका प्रोग्राम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे रिज़ल्ट्स की उम्मीद हमें पहले से भी थी। और ख़ास बात ये है कि ये बैच कोविड बैच कहलाता, जो बच्चे SSC में कोविड की वजह से सब बच्चे पास हो गए थे वो बैच है ये। उस बैच में बच्चे मेहनत करके, और शायद गालिबन फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स लिखे थे लेकिन सबको पास कर दिया गया था। सेकेंड ईयर में थ्रू आउट द स्टेट ये एग्ज़ाम हुआ और उसमें ये बेहतरीन नताइज हैं। और अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर एग्ज़ामिनेशन में जैसे IIT हो, MSET हो या फिर हमारे NEET हो, इसमें भी इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि ये लोग अच्छे से अच्छे नंबरात लाएंगे और अच्छे से अच्छे सीट्स हासिल करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उदयपुर वाक़े की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी समाज में कोई भी तशद्दुद नहीं कर सकता। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आर्ट न्यूज़ के ज़ुबैर की गिरफ़्तारी की भी वो मज़म्मत करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर आज़म से अपील की जाती है कि कानून के मुताबिक नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसका कंडेम किया है। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है। उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा उसका भी कंडेम करते हैं। जुबैर की गिरफ्तारी देखिए, जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है हमने कल अपने स्पीच में उसका भी कंडेम किया है, क्योंकि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक केस में बुलाया था, उसमें गए थे। अचानक उनको दूसरे केस में उनको गिरफ्तारी अमल में आई, और जो सेक्शंस IPC के लगाए गए हैं उसमें सेक्शन 41 CRPC की नोटिस देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है DK बासु, जिसमें किसको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको वकील मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला उनसे। तीसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस क्यों नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जब उन्होंने जो अनाप शनाप बका उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कानून के तहत एक्शन लिया जाए। गच्चीबोली के लाल स्ट्रीट नाइट क्लब के बाहर शराबियों ने हंगामा आराई की। कल रात तकरीबन आधे घंटे तक ये तमाशा सड़क पर चलता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। इस वाक़े के वीडियोस भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में दिखाया गया है कि शराबियों ने न सिर्फ सड़क पर हंगामा आराई की, बल्कि सड़क से गुजरने वाले कई अफराद को निशाना बनाते हुए उनसे मारपीट भी की। तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर पर तेलंगाना के सीनियर रेसिडेंट्स डॉक्टर्स ने हैदराबाद के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर पर धरना दिया। तेलंगाना सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हैसियत से रुजू होने के बाद अब तक उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। 8 माह से वो तेलंगाना में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्टाइफंड भी नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मसले पर चंद दिन कबल सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अपने अपने मुतल्लिक़ा हॉस्पिटल्स में धरना दिया था और अहदेदारों को याददाश्त भी पेश की थी, लेकिन उनकी तनख्वाहों को अब तक अदा नहीं किया गया, जिस पर वो DME के दफ्तर पर धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि किसी भी मजहबी मुक़द्दस शख्सियत की शान में गुस्ताखी करना एक संगीन जुर्म है। BJP की तर्जुमान व नुमाइंदा नुपुर शर्मा ने
محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جو اہانت کی حرکت کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے۔ حکومت کا اس پر کوئی کارروائی نہیں کرنا زخم پر نمک رکھنے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور کسی شخص کو بطور خود مجرم قرار دے کر قتل کر دینا نہایت قابل مذمت حرکت ہے۔ نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اسلامی شریعت اس کو جائز ٹھہراتی ہے، اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ راجستھان میں پیش آئے واقعے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ بورڈ اس مسئلے میں شروع سے ایک طرف مسلمانوں سے اپیل کرتا رہا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں اور قانونی راستہ اختیار کریں، تو دوسری طرف حکومت سے بھی اپیل کرتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی جذباتی مسئلہ ہے، اسی لیے کسی بھی مقدس مذہبی شخصیت کی اہانت کے سلسلے میں سخت قانون بنانا چاہیے۔ جو ادے پور میں گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اس کے لیے جتنے سخت سے سخت الفاظ ہوتے ہیں اس کے اندر میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہمارا قرآن شریف اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ ہمارے پروفٹ محمد جن کے نام پر یہ اس قسم کی بربرتا کی گئی ہے وہ یہ اس قسم کی اجازت دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم تمام ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب سے مؤدبانہ طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی دیش کے اندر ایکتا اور اکھنڈتا کا واتاورن پیدا کریں اور شانتی بنائے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسی بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش کو ہم یہ طالبانی کلچر کے اوپر نہیں آنے دیں گے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اسلام بدنام ہوتا ہے، دھرم بدنام ہوتا ہے، واتاورن خراب ہوتا ہے، بے گناہوں کا خون ہوتا ہے، وہ کتنا غلط ہے۔ جبکہ ہمارے پروفٹ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے اندر وہ جس راستے سے جاتے تھے ان کے اوپر کچرا پھینکا جاتا تھا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ میرے پہ آج کچرا پھینکا نہیں گیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے وہ ان کے گھر پہنچے اور ان کی تیمارداری کی۔ لیکن آج اور اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو معاف کر دیا، لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اس کے باوجود یہ اس قسم کے نیوسنس کریٹ کر کے آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہو؟ آپ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اور اسلام کو کیا ثابت؟ نہ ان کی آخرت میں جگہ ہے نہ دنیا کے اندر جگہ ہے۔ ظہیر الدین علی سی ای او و ڈائریکٹر مرسی ٹی وی اور شیخ ثناء اللہ مدنی نے کہا ہے کہ مرسی ٹی وی تقریباً 2 سال سے لاکھوں افراد تک پہنچا ہے۔ اس نے پہلے اسلامک و ایجوکیشن OTT پلیٹ فارم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تقریب 30 جون کو کنگز پیلیس گڈی ملکا پور میں منعقد ہوگی، جس میں تمام سے شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ رحیم، آپ سب کا ہمارے مرسی ٹی وی پیغام رحمت سیٹلائٹ ٹی وی چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جو کامیابی ہمارے ناظرین سے ہی ہے۔ الحمدللہ ہم ایک قدم اور مرسی ٹی وی کے OTT پلیٹ فارم کو ہم ابھی 30 تاریخ کو جون لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو پلیٹ فارم کا سارے ہندوستان کے جو میجر لینگویجز ہے اس میں ہم یہ مرسی ٹی وی کا OTT پلیٹ فارم کو لانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا اردو اور تیلگو میں رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارے اس جو پلیٹ فارم میں جیسے کہ ایڈوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ اور جیسے کہ ہیلتھ کے اور طب نبوی کے اور کئی سارے لوگوں کو ہم انشاءاللہ اس کے اندر بڑے بڑے جو جیسے کہ لیگل اویئرنیس پروگرامز بھی رہیں گے انشاءاللہ، کہ اور بھی اس چیز میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اور جیسے کہ کوئی اور بھی بہترین پلیٹ فارم اگر ہے تو اس کے اندر فیوچر میں ایڈ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ویڈیو آن ڈیمانڈ پلیٹ فارم ہے کہ آپ کو لائیو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پروگرام اگر بعد میں بھی اگر آپ ویو کرنا چاہ رہے ہیں، واچ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس میں انشاءاللہ تو سہولت ہوگی۔ OTT پلیٹ فارم کا تو انشاءاللہ
आजकल बड़े बड़े प्लेयर्स है OTT के, वैसा ही ये मर्सी टीवी का एक एजुकेशनल और दीनी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इंशाल्लाह। तो हम यही हमारी गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम में आप सब नाजरीन आए और इसको है ना सक्सेस करें इंशाल्लाह। 30 तारीख 4 बजे से 9 बजे तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम रहेगा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जय्यद उलमा कराम इसमें हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो आप सब इसमें, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसमें हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और इसमें ख़वातीन के लिए भी सेपरेट इंतज़ाम है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। ये हमारा जो चैनल है मर्सी टीवी, ये सैटेलाइट टीवी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह। एयरटेल पे अवेलेबल है और जियो टीवी प्लस पर भी अवेलेबल है और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है जियो के, और सिटी डिजिटल पे अवेलेबल है, और कई सारे मुख्तलिफ हिंदुस्तान के कई सारे नेटवर्क्स पे अवेलेबल है, जैसे कि हम उतना टाइम नहीं है कि हम गिना सके। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोगों तक हमारा जो नेटवर्क अभी पहुंच रहा है, पैगाम पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे इसमें हम जो ऑडियंस की जो हमारा सपोर्ट मिला है, इसलिए हम बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए हम जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने उदयपुर में मुबैना तौर से आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में कत्ल के वाक़े को अफसोसनाक और हर तरह से लायक मज़म्मत करार दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस वाक़े को जिसने भी अंजाम दिया है इसको किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। ये मुल्क के कानून और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। हमारे मुल्क में कानून का निज़ाम है, किसी शख्स को ज़ाती तौर से कानून को हाथ में लेने का हरगिज़ इख्तियार नहीं है। बेगमपेट में लगाया गया फ्लेक्सी पुलिस के लिए परेशान कुन लम्हे का सबब बन गया, क्योंकि इस फ्लेक्सी में मोदी की तस्वीर के साथ बाय बाय मोदी लिखा गया है। चारशुम्बे की सुबह अचानक इस इलाके में इस तरह के मोदी के फ्लेक्सी के सबब पुलिस की परेशानी में इजाफा हो गया। बाज़ नामालूम अफराद ने यह फ्लेक्सी बोर्ड बेगमपेट रोड पर लगाया था। इस फ्लेक्सी में लिखा गया है कि मोदी ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। नोटों की मनसूखी, सरकारी इदारों की फ़रोख्त, ज़रई क़वानीन, अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ ये होर्डिंग लगाई गई थी। इसमें लिखा गया था कि मोदी काला धन वापस लाने में नाकाम रहे। बाद पुलिस के अहदेदार वहां पहुंचे और इस फ्लेक्सी को वहां से हटा दिया। पुलिस ने इस एहसास का इजहार किया कि मुखालिफ मोदी प्याम से इस इलाके में कशीदगी फैल सकती है। समझा जाता है कि नामालूम अफराद ने इस फ्लेक्सी के ज़रिए मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत को जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि हैदराबाद में हाल ही में बीजेपी के दफ्तर के करीब वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हुकूमत की उल्टी गिनती का फ्लेक्सी बोर्ड लगाया गया था। 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ किए गए एक्ट पर 2 फ़नकारों को हयात नगर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसी केस में क़ब्ल-अज़ीम बीजेपी लीडर बालाकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम्मा और एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था, जबकि बंडी संजय को नोटिस दी गई थी। इंटरमीडिएट के नताइज में नारायणा जूनियर कॉलेज की लड़कियों का नुमाया मुजाहरा रहा है। कॉलेज इंतज़ामिया ने कहा कि साल अव्वल का इसका नतीजा 99.75 और साल दुवम का 95% नतीजा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल कल्याणी ने कहा कि साल अव्वल में 470 था 467 निशानात तालिबात ने हासिल किए। साल दुवम में तालिबात ने 990 निशानात स्कोर किए। उन्होंने कामयाब तालिबात को मुबारकबाद भी पेश की। ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్లో మా స్టూడెంట్స్కి 467 టాప్ మార్క్ వచ్చింది సార్. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సే దిస్. అండ్ దట్ టు గర్ల్స్ క్యాంపస్లో ఇంతమందికి 460 అబవ్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సెకండ్లో కూడా సో శ్రీలేఖ అనే అమ్మాయికి 990 మార్క్స్, 1000 మార్క్స్కి 990 మార్క్స్ వచ్చాయి. సో అండ్ గర్ల్స్కి చాలామందికి 980 అబవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇక్కడ కూడా 460 అబవ్, ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా 460 అబవ్ కూడా 90 మెంబర్స్కి వచ్చాయి మార్క్స్. సో అది అమ్మాయిల క్యాంపస్లో ఇంతమందికి మంచి మార్క్స్ రావడం వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దిస్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. మిస్ అక్షర. నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ సీనియర్ ఇంటర్. ఇవాళ మార్క్స్ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ టీచర్స్, ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ అండ్ JLs, I got this rank. I'm Srilekha. I secured 990 out of 1000 in my intermediate examinations,
and with the help of teachers and all my faculties, I secured this marks. I'm really happy to score this. जमुना हैचरीज की जानिब से ज़िला मेदक के अचमपेट और हकीम पेट मवाज़ात में मुबैना तौर पर कब्ज़ा की गई मुख्तस अराज़ियात किसानों के हवाले कर दी गई हैं। मसाई पेट तहसीलदार ने पंचनामे की रिपोर्ट खातून किसान श्यामला के हवाले कर दी। ये पंचनामा मेदक और नरसापुर के डिविजनल ऑफिसर्स की निगरानी में किया गया। फिल्म अदाकारा मीना के शौहर विद्यासागर चल बसे। चंद दिनों से वो कोविड के बाद के तिब्बी मसाइल के शिकार थे। उन्होंने चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। बेंगलुरु के ताजिर विद्यासागर से अदाकारा की शादी 2009 में हुई थी। उन्हें एक बेटी भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आज सुबह शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की हुक्मरान महाविकास अघाड़ी हुकूमत से कहा है कि वो जुमेरात 30 जून को असम्बली के ऐवान में फ्लोर टेस्ट दें और अपनी अक्सरियत को साबित करें। वाज़ेह है कि मंगल को रात देर के राजभवन की तरफ से महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर सेक्रेटरी को एक ख़त जारी किया गया था। अपोजिशन BJP के एक वफ़द ने साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में गवर्नर से मुलाकात की थी और MVA को अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए दबाव डाला था। इससे पहले फडणवीस ने कल दिल्ली का दौरा किया और गवर्नर को फौरी हिदायत देने पर जोर दिया था। गवर्नर ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ एतमाद के वोट के वाहिद नुकाती एजेंडे के साथ कल महाराष्ट्र असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया है। बिहार में रुकने पार्लिमान हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 अरकान असम्बली के RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की इत्तला मिली है। बिहार असम्बली के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। बताया गया है कि आज तेजस्वी यादव ने बिहार असम्बली स्पीकर विजय सिन्हा से MIM के 4 अरकान असम्बली के साथ मुलाकात भी की है। इस मौके पर सिवाय अख्तरुल ईमान के MIM के सभी अरकान असम्बली भी मौजूद थे। जो अरकान असम्बली RJD में शामिल हो रहे हैं उनमें मोहम्मद इजहार अस्फी, शहबाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद और अंजार नईमी शामिल हैं।